اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹو ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فرید بشیر۔ ناظرین، جیسے کہ ہماری پہلے سے کوشش ہوتی ہے کہ اپنے ناظرین کے لیے ڈفرینٹ قسم کے پروگرام لے کے آنا اور ان کی خوشیوں میں شریک ہونا۔ آج ہمارا ایک اسپیشل سیگمنٹ ہے اور یہ سیگمنٹ ہے 25 دسمبر کرسمس ڈے کے حوالے سے ہے، اور اس حوالے سے آج کا ہمارا خصوصی نشریات جو آج کا ہمارا اسپیشل پروگرام بھی ہے اور خصوصی نشریات بھی اپنی نیوز کی طرف سے لائیو دکھائی جائیں گے آپ کو۔ آج 25 دسمبر کے حوالے سے میثاق مرکز چکوال مانفیل چوک میں یہاں پہ ایک بڑا اچھا ایونٹ ہوا ہے، جس میں باقاعدہ میں بطور خود اور ہمارے ساتھ جو راجہ افتخار ہیں انہوں نے بھی یہاں پہ شرکت کی ہے۔ تو آج وہاں پہ بڑا کلاس وہاں پہ کیک کاٹا گیا ہے اور وہاں پہ جو کرسمس حوالے سے جو آئے تھے ہمارے کرسچن بھائی، ان کو وہاں پہ مبارکباد وش کی گئی ہے اور ان کا جو سیلیبریشن ڈے اس حوالے سے وہاں پہ بہت زبردست قسم کا ایونٹ بھی رہا ہے۔ تو آج ہمارا اسپیشل سیگمنٹ ہی کرسمس ڈے کے حوالے سے ہے۔ اچھا راج صاحب، آج آپ نے وہاں پہ وزٹ کیا ہے اور وہاں پہ آپ نے کوریج بھی کی ہے وہاں پہ، تو کیسا پایا ہے وہاں پہ؟ اور پولیس کی جانب سے فرسٹ ٹائم دیکھا گیا کہ ڈسٹرکٹ پولیس افسر کیپٹن ریٹائرڈ واحد محمود کی جانب سے انہوں نے اسپیشل وہاں پہ ایک سیگمنٹ ہوا اور وہاں پہ وہ ایز اے گیسٹ آئے اور انہوں نے کیک بھی کاٹا اور وہاں پہ پولیس کی بھی کافی نفری وہاں پہ موجود تھی۔ تو کیا سمجھتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ بہت شکریہ راجہ فرید بشیر صاحب۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج اپنے اسٹوڈیو میں مجھے جو ہے وہ ایز اے گیسٹ انوائٹ کیا۔ جی بالکل، آپ درست فرما رہے ہیں کہ آج 15 جو میثاق مرکز ہے پولیس کا، وہاں پہ ایک تقریب جو ہے وہ کرسمس ڈے کے حوالے سے منعقد ہوئی ہے۔ اس پر گفتگو کرنے سے پہلے میں سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے ایپی نیوز چینل اور ایپی نیوز میڈیا گروپ کی جتنی ہماری ٹیم ہے اور انتظام میں عمران ہے، ان کی طرف سے جتنی بھی پورے پاکستان میں اور دنیا میں جو ایک ہماری کرسمس جو ہماری جو مسیح برادری ہے، ان کو کرسمس کی جو ہے وہ دلی مبارکباد جو ہے میں پیش کرنا چاہوں گا۔ تو جو آپ کا ریسٹ کویشچن تھا آج کی تقریب کے حوالے سے، ڈیفینیٹلی وہ ایک بہت اچھی ایک تقریب جو ہے منعقد ہوئی ہے، ایک دعائیہ اس کو آپ تقریب کہہ لیں، اور اس پہ مسیح برادری کے جو یہاں پہ ان کے نمائندے ہیں وہ بڑی تعداد میں موجود تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہاں پر خدمت مرکز کی جو انچارج ہیں سب انسپیکٹر سیدہ سمیہ بطول وہ موجود تھی، اور ڈی پی او چکوال کیپٹن ریٹائرڈ واحد محمود نے ایک اسپیشل جو ہے وہ گیسٹ کی حیثیت سے اس تقریب میں شرکت کی۔ تو یہ بیسیکلی یہ تقریب جو ہے یہ ایک اس کو ہم اس لیے امپورٹنٹ کہتے ہیں اور اہمیت دیتے ہیں کہ یہ مذہبی ہم آگے کے لیے جو ہے یہ ایک بنیادی جو ہے وہ یہ حیثیت رکھتی ہے۔ اور یہاں پر ایسا میں ڈی پی او کیپٹن ریٹائرڈ واحد محمود کا خصوصی جو ہے وہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ جب سے انہوں نے چکوال میں بطور ڈی پی او جو چارج سنبھالا ہے، تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کی یہ کوشش رہی ہے کہ جو مذہبی ہم آگے ہے، مختلف مسلک اور مختلف جو ہمارے جو فرقے ہیں ان کو قریب لانا اور ان کے جو مطلب ہے ان میں کوئی غلط تفضاد ہے ان کو دور کرنا، اور انہوں نے ایک بہت پازیٹیو بہت پازیٹیو انہوں نے جو ہے وہ کردار ادا کیا ہے۔ جی بالکل، بہت پازیٹیو کردار ادا کر رہے ہیں، بالکل نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس طرح کے ایونٹ ہونے سے اقلیتوں میں اور کسی کو کم تر نہیں سمجھنا چاہیے کہ اور اس طرح کے ایونٹ سیلیبریٹ کرنے چاہیے، اور جس طرح کا کوئی بھی ہو، باقاعدہ ہمارا اسلام مذہب اجازت دیتا ہے کہ کوئی بھی اگر ہے اس طرح کے مذہب کے حوالے سے تو وہ اپنی حدود میں رہ کے اپنی لمٹ میں رہ کے وہ اپنی سیلیبریشن کر سکتا ہے۔ اور آج کا جو سیلیبریشن ڈے تھا اور وہاں پہ میں خود بھی وہاں پہ موجود تھا، تو بڑا ایک پرامن سا وہاں پہ سیلیبریشن ہوئی ہے اور وہاں پہ باقاعدہ مٹھائی اور مختلف یہاں پہ۔ جی ناظرین، وقت ہو جاتے شارٹ سے بریک، آپ ملتے ہیں شارٹ سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ گاڑی سے شر کی چڑھ اچھلا، شکر ہے میں بچ گئی۔ پھینک دو کرتا بھابھی، یہ داغ نہیں دھلنا۔ امی کروں دھلائی؟ کیا ان داغوں کی؟ میرا بونس ٹرائی سٹار بنائے جھاگ زیادہ اور کرے داغوں کی ایسی دمدار دھلائی جو اس قیمت میں پہلے کبھی نہ آئی۔ جی پھوپھو، ہو گئی دھلائی؟ دمدار دھلائی۔ واہ کیا بات ہے بونس کی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹو ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فرید بشیر۔ ناظرین، جیسے کہ وقفے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج اسپیشل
क्रिसमस डे के वाले से हमारा स्पेशल सेगमेंट चल रहा है। अच्छा राजा इफ्तिखार साहब, आप ये बताएं कि अक़लीतों के वाले से हमारे मुल्क पाकिस्तान में इनको किस तरह के यहाँ पे मजहबी आज़ादी है और वो किस तरह मना रहे होते हैं? आप क्योंकि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप अक्सर इस तरह के इवेंट पे जा रहे होते हैं, तो आपने अपनी साथी आंख से कैसा पाए? रैसब बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। अक़लीतों के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है वो ये एक पुरअमन मुल्क है। पाकिस्तान में जितनी भी यहाँ पे हमारी मुस्लिम बिरादरी है, यहाँ पर जो है वो इवन जो आप देखें कि जो सूबा सिंध है वहाँ पर एक बड़ी तादाद में हिंदू जो है वो वहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरीके से जो है वो सिख बिरादरी जो है वो उसकी एक बहुत बड़ी नुमाइंदगी जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है। तो पाकिस्तान मैं ये कहूँगा कि दुनिया के चंद ऐसे ममालिक में शामिल है जहाँ पर तमाम जो अक़लीतें हैं, तमाम जो मज़हबों के जो यहाँ पे लोग आबाद हैं, उन्हें मुकम्मल जो है वो मजहबी आज़ादी यहाँ पे हासिल है। आप ये देख लें कि यहाँ पे जो चर्च बने हुए हैं, जब संडे होता है और इबादत का जो मुस्लिम बिरादरी है उनकी इबादत का दिन होता है, तो वहाँ पे फुल प्रूफ जो सिक्योरिटी के इंतजाम जो आप देखते हैं कि चर्च के बाहर जो है वो मौजूद होते हैं। इसी तरीके से आप ये देखें कि अभी ये 3 से 4 दिन पहले आपने देखा होगा कि तकरीबन 60 to 65 जो है वो हिंदू यात्री जो है वो हिंदुस्तान से यहाँ पे कटास राज पे आए हैं। तो कटास राज पे आप ये देखें कि पूरी की पूरी हमारी मतलब है कि जो कमिश्नर रावलपिंडी यहाँ पे वो स्पेशल जो है उन्होंने सिक्योरिटी के इंतजाम का जायजा लिया। ज़िली जो पुलिस है, ज़िली इंतजामिया, मैडम डिप्टी कमिश्नर जो है कुर्रतुल मलिक और तमाम ज़िली जो आला क़यादत है वो वहाँ पर मौजूद थी। उन्होंने उनका इस्तकबाल किया, उन्होंने बड़ा प्रोटोकॉल एक दिया, उन पे फूल निछावर किए। तो ये चीज़ अक्कासी करती है कि जो पाकिस्तान है ये एक पुरअमन मुल्क है और इस मुल्क में जो है वो तमाम जो हमारी मजहबी जो जितनी भी अक़लीतें हैं उनको मतलब उसकी इबादत के मुकम्मल हकूक़ हासिल है और तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। और आपने ये देखा होगा राय साहब कि इसके मुकाबले में अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान जो है वो एक मतलब है कि फाशिस्ट कंट्री के तौर पर दुनिया में जाना जाता है कि वहाँ पर कोई भी आप ये देख लें कि जो मज़हब है उसके लोग जो है वहाँ पे महफूज नहीं। आप मुसलमानों का देख लें कि वो जब यहाँ आते हैं तो हम उन्हें किस तरीके से प्रोटोकॉल देते हैं और किस तरीके से उनकी इबादतगाहों का हम पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। जबकि वहाँ पे देखें तो उन्होंने हमारी बाबरी मस्जिद जो है उसको उन्होंने शहीद कर दिया। सिख कम्युनिटी आप देखें कि सिखों पे जो है वो हिंदुस्तान जो है वो कितना मतलब है वहाँ पे मजाक उड़ा रहा है। अभी आपने देखा होगा कि महीना पहले जो कनाडा में सिख जो उनका एक रहनुमा है उसको जो है वो कत्ल टारगेट किलिंग की गई। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के जो है ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा पाकिस्तानी गवर्नमेंट को आप कह लें और पाकिस्तानी लोगों को कह लें जो अमल पसंद और मोहब्बत करने वाले लोग हैं और ये बहुत बड़ा क्रेडिट है हमारे नाम। जी बिल्कुल ऐसा क्रेडिट और अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान में रहते हैं और हम इस पर फख्र करते हैं कि यहाँ पे भी मुस्लिम यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म के इस तरह की एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है और फंडामेंटल राइट्स में भी है कि यहाँ पे तमाम मज़ाहब को यहाँ पे बाकायदा अपनी इबादत करने की मुकम्मल आज़ादी है। अभी नाज़रीन आपको भी लिए चलते हैं चकवाल मिसाक मरकज़ में जहाँ पे क्रिसमस डेज के हवाले से वहाँ पे सेलिब्रेशन चल रही है। आप भी देखें, चलते हैं मिसाक मरकज़ चकवाल। समिया बतूल साहबा और डीपीओ चकवाल के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जिन्होंने मसीही लोगों के साथ ये मोहब्बत का इजहार किया और हम दिल से शुक्रगुजार हैं। और डीपीओ साहब के हम शुक्रगुजार हैं कि जब जड़ामाला में भी वाक़या हुआ तो हमारे चर्च में आके इन्होंने हमारे साथ जो है बड़े दर्द के साथ इजहार अफसोस किया। इसके लिए हम तहे दिल से इनके शुक्रगुजार हैं। जब भी कोई भी काम क्रिश्चियनिटी को इनके साथ पड़ता है तो ये बड़ी मोहब्बत के साथ हमें डील करते हैं। हम इनके लिए खुदा उनके शुक्रगुजार हैं। और हमारे दरमियान एडर फालूस साहब हैं, वो दुआ में हादी होंगे और उसके बाद हम छोटा सा एक गीत गाएंगे, फिर केक कटिंग करेंगे। आए हम सब दुआ करें। रब्बुल आलमीन तेरी पाक ज़ात के नाम में तेरा शुक्र करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए पाक खुदा कि आज हम इस खुशी के मौका में खुदावंद यीशु मसीह की वलादत का ये जो मौका है, इस खुशी के मौका में हम बहम मिल के इकट्ठे हो के खुदावंद इस खुशी को मना रहे हैं। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं पाक खुदा। हम सब मिल के अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए बरकत की, सलामती की दुआ करते हैं खुदा कि ये मुल्क हमेशा सलामत रहे पाक खुदा।
क्योंकि खुदावंद मुल्क में ही हम सब की सलामती है। खुदावंद अफसर बाला के लिए तेरा शुक्र करते हैं पाक खुदा, अपने डीपीओ साहब के लिए, और खुदावंद जितने भी दीगर अफसरान हैं पाक खुदा, अपनी बहन के लिए तेरा शुक्र करते हैं पाक खुदा, जो खुदावंद इस खिदमत को कर रहे हैं पाक खुदा। मिन्नत करते हैं कि तेरा आसमान खुले खुदा और तेरे आसमान से अजर आए। मसीह के नाम में ये दुआ मांगते और पाते हैं, आमीन। हम सभी मिलकर खुदा की तारीफ़ करेंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में हम एक गीत गाएंगे। एक तारा चमका है, एक तारा चमका है, एक नूर सा उतरा है, एक नूर सा उतरा है, हर गली गली रोशन, हर गली गली रोशन, पूरे नूर नजारा है, एक तारा चमका है, एक तारा चमका है। आंगन आंगन सब्ज सवेरा, दूर हुआ है दिल का अंधेरा, आंगन आंगन सब्ज सवेरा, दूर हुआ है दिल का अंधेरा, आंगन आंगन सब्ज सवेरा, दूर हुआ है दिल का अंधेरा, दूर हुआ है दिल का अंधेरा, एक तारा चमका है, एक तारा चमका है, एक नूर सा उतरा है, एक नूर सा उतरा है, हर गली गली रोशन, हर गली गली रोशन, पूरे नूर नजारा है, एक तारा चमका है, एक तारा चमका है। आज इस बड़ी खुशी के मौका पर हम पूरी बरादरी की तरफ से, मसीही लोगों की तरफ से ये पैगाम देना चाहते हैं कि क्रिसमस के मौका पर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत के मौका पर जो है वो हमें ये तालीम देते हैं, और इसके पीछे भेद ये है कि जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में मोहब्बत बनकर आए, और जब उनकी विलादत भी होती है तो मजूसी और फिर सितारा, मुकद्दसा मरियम और वली यूसुफ और गडरिए कहाँ से लोग जो है उनको सिजदा करने के लिए आते हैं। और उनकी विलादत जो है हमें ये, उनकी विलादत पर ये सबक मिलता है कि उनकी विलादत हम सबको जो है वो इकट्ठा करती है, और खुदा खुद मोहब्बत है। हमारी बाइबल मुक़द्दस को, जिसको हम सभी आसमानी किताब मानते हैं, अगर एक लफ्ज़ में बयान किया जाए तो सारी बाइबल मुक़द्दस का खुलासा ये है कि खुदा मोहब्बत है, और मोहब्बत की तारीख़ उतनी पुरानी है जितनी खुद खुदा की है। और बाइबल मुक़द्दस में अगर हमें मिलता है कि इंसान का बड़ा ईमान हो, वो मोजज़ात करे, सब कुछ करे, अगर मोहब्बत नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। हम अपने सारे मुस्लिम बहनों के लिए, बहन भाइयों के लिए तहे दिल से इनकी शुक्रगुजारी करते हैं, डीपीओ चकवाल के लिए और मिसाक खिदमत मरकज़ अपनी बहन के लिए जो हमारी मोहतरमा हैं मैडम सईदा बतूल, इनके लिए हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं
जो परसों भी हमारे साथ मौजूद थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की खुशी में पूरी दुनिया में जहाँ पर मसीही लोग हैं बड़ी धूमधाम के साथ खुशियाँ मनाई जा रहे हैं। और हमारे आज अफसरान बाला भी इस खुशी के मौका पर इन्होंने ये सारे क्रिश्चियन लोगों के लिए जितने भी काम करते हैं और हमारे नौजवान जो पुलिस में हैं उनके लिए सारा एहतमाम किया। हम दिल से इनके लिए शुक्रगुजार हैं और दुआ भी करते हैं कि खुदा इनको और ज़्यादा सरफराजी और तरक्की अता करे। सभी हम अपने सरों को झुकाएंगे और खुदा के हुज़ूर झुकेंगे, दुआ करेंगे। प्यारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं आज की सारे प्रोग्राम के लिए और जिनकी वसादत से खुदावंद ये प्रोग्राम मुनक्कद हुआ। ए खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ये क्रिसमस ट्री, ये लाइटिंग करवाना, ए खुदा तेरा शुक्र करते हैं कि जितनी भी मोहब्बत है खुदा क्रिश्चियनिटी के साथ तेरे लोगों ने की, ए खुदा दिल से तेरे शुक्रगुजार हैं। और जलाल के बादशाह जो हमारे अफसरान बाला हैं उनके लिए हम सभी मिलकर ए खुदा दुआ करते हैं कि तू अपने लोगों को और भी ज़्यादा ए खुदा सरफराजी अता कर। और जो मोहब्बत का पैगाम है खुदा इन सब के साथ ए खुदा इस वलादत मसीह की ए खुदा खुशियों में जितने भी शरीक हुए हैं और हम जाने कि ए खुदा इंसानियत ये है, हर मज़हब ये सिखाता है कि खुदा मोहब्बत है। तेरा शुक्र करते हैं, इस सारे प्रोग्राम को तेरे हाथ में देते हैं। जो ही खुदावंद ये केक काटा जाए, खुदावंद केक की रस्म अदा की जाए और जो खुशियाँ खुदावंद पूरी दुनिया में खुदावंद तेरी रौनक के दुबाला हैं, इसी तरह खुदा हमारी दिलों में भी है खुदा ये मोहब्बत की शमा हमेशा के लिए खुदावंद जलती रहे। ये दुआ हम तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेकर मांगते हैं, आमीन। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्ज़दारों को कर्ज़ मुआफ़ करते हैं तू भी हमारे कर्ज़ हमें मुआफ़ कर और हमें आजमाइश में ना डाल बल्कि बुराई से बचा, क्यों जो बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तकते रहें, आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटी, खुदा कुदस के नाम में। अच्छा जी, राजा प्रकाश नाम है, वाइस प्रेसिडेंट खटवाल क्लब। मैं खटवाल क्लब की तरफ से सबसे पहले यहाँ पर मौजूद तमाम मुस्लिम बरादरी को अपनी तरफ से मेरी क्रिसमस की मेरी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और इसके साथ साथ जो है वो DPO के अपने रिटायर महमूद साहब यहाँ पे तशरीफ फरमा है कि जब से यहाँ पे इन्होंने जहाज संभाला है हमने ये देखा है अपनी साथी आँख से कि उन्होंने तमाम मसलक में हमारी के लिए एक बड़ा जानदार किरदार अदा किया। ये खुद माशाल्लाह अच्छा जी, जो ही ये केक की रस्म अदा हो आप सभी तालियां क्लैपिंग कर सकते हैं। मैडम जी आप हाथ बढ़ाएं। हाँ जी अच्छा, कैमरामैन जितने भी हैं, मेरा बेटा मेरी बेटी है पास है आप इधर आ जाओ। मैडम मेरी बेटी मेरा बेटा आपके पास। हाँ जी, जो ही छोड़ा। हाँ जी, चले मैं बस थोड़ी सी बात करूँ। जी जी एक ऐसा मौका है। मिसाक सेंटर दरअसल पंजाब पुलिस का अक़लियती हकूक़ और बैनुल मुज़ाहिर आहंगी का यूनिट है और हम इस मुबारक मौके के ऊपर आपको मुबारकबाद भी पेश करते हैं और साथ ही साथ इस अज़म का इरादा करते हैं कि मिसाक सेंटर अपनी तमाम काविशें जो कि बैनुल मुज़ाहिर आहंगी के लिए और अक़लियती हकूक़ के लिए है वो उठाता रहेगा इंशाल्लाह। इस साल में जब ये मिसाक सेंटर बना तो इसमें टोटल कोई 300 से 400 के करीब जो मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं बिलखुसूस अक़लियती उनको खिदमात फराहम की गई हैं। और लेकिन साथ ही साथ बताना चलूँ कि तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ और मिसाक सेंटर और जो पुलिस खिदमत मरकज़ है
पिछले साल हमने टोटल 25,000 लोगों को खदमात फराहम की और अल्हम्दुलिल्लाह रवां बरस जो 2023 है इसमें टोटल 70,000 लोगों को हमने खदमात दी और ये हमारी जो खदमात है 200-300 गुना ज़्यादा है पिछले साल से और हम इस बात का इरादा करते हैं इंशाअल्लाह ताला हम बैनुल मुज़ाहिब जो मामगी है और अक़लियत के जो हकूक़ है उसके लिए इंशाअल्लाह आपके साथ और सबसे अहम जो चीज़ है कि इस मुबारक मौका के ऊपर जहाँ पे हमने आपको मुबारकबाद दी है साथ ही साथ ये अज़म है कि मिसाक सेंटर के नीचे हम तमाम मुज़ाहिब हैं और इंशाअल्लाह ताला तमाम अक़लियत के हकूक़ के लिए सीधा सपार है इंशाअल्लाह। थैंक यू सो मच।